Hello Mind Warriors, welcome to Wonders Down Under, where we explore lesser known natural and man-made marvels below the earth's surface. और आज हम कौन सा अंडरग्राउंड अजूबा एक्सप्लोर करेंगे, ये जानने के लिए घुमाते हैं हमारा एडवेंचर व्हील. Here we go. And there it is. हमारा आज का अंडरग्राउंड मार्वल है एक ऐसा सॉल्ट माइन जो आपके होश उड़ा देगा. Yes, the Salina Turda in Romania. So let's get started with this episode of Wonders Down Under. रोमेनिया के ट्रांसिल्वेनिया रीजन में स्थित टुर्डा में है सलाइना टुर्डा, a salt mine that has been in the making for millions of years. Prehistoric times में पूरा ट्रांसिल्वेनिया रीजन एक सी के नीचे हुआ करता था. लाखों सालों में धीरे धीरे पूरा पानी इवेपोरेट हो गया और पीछे रह गया ये इनॉर्मस लेयर ऑफ सॉल्ट. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इस सॉल्ट माइन का सबसे पहला मेंशन रोमन एरा के दौरान हुआ था, जब इस एरिया का नाम पोटाइसा हुआ करता था. रोमन एरा में यहां पर सॉल्ट माइनिंग का कोई सॉलिड एविडेंस अवेलेबल नहीं है, और अगर ऐसा हुआ भी था तो कुछ ओल्ड सेक्शंस के कोलैप्स हो जाने की वजह से जो एविडेंस थे वो भी खत्म हो गए. उस वक्त रोमन्स इस रीजन में आयरन, पॉलीमेटेलिक ओर्स, गोल्ड और सिल्वर की माइनिंग किया करते थे. साल 1271 के कुछ डॉक्यूमेंट्स में टुर्डा के सॉल्ट माइंस का पहला मेंशन है, और उन डॉक्यूमेंट्स में यह भी कहा गया है कि आसपास के सारे रीजन्स का सॉल्ट इसी सॉल्ट माइन से सप्लाई होता था. वक्त के साथ दूसरे भी माइंस को एक्सप्लोर किया जाने लगा और टुर्डा सॉल्ट माइंस में काम कम होने लगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सॉल्ट माइनिंग पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गई और धीरे धीरे सलाइना टुर्डा में सॉल्ट माइनिंग ना के बराबर होने लगी. और फाइनली 1932 में गवर्नमेंट ने टुर्डा सॉल्ट माइंस में सॉल्ट माइनिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया. For a few years, the salt mine was completely forgotten, but during the Second World War, it was used to protect the citizens during air raids and bombings. Since 1950, it has been used as a warehouse to store cheese, and in 1992, it was turned into a museum, and the doors were opened for the common public. Through the early years, salt extraction was done manually using simple tools like pickaxes, hammers and chisels. Even during the 18th century, it is believed that only free people were employed to work in the Turda salt mine instead of slaves, and they were paid in an old currency called florins. And sometimes they were also given barrels of wine and loaves of bread. चलिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. रोमन एरा में भी सॉल्ट एक नेसेसिटी तो थी, but it used to be very expensive. Salt was so expensive that the daily pay of the soldiers used to be a handful of salt. And this is the origin of the word salary, which now means payment in exchange for work. एक और English phrase है जो आपने शायद सुनी होगी, to be worth one's salt, which means to be good at what you do. So the people who did good work were considered to be worthy of the salt that was given to them. हिंदी में भी एक कहावत है, किसी का नमक खाना. It is not necessarily a reference to eating someone's food, but being someone's employee and working for them. I know what some of you must be thinking right now. Salt को इतना ज्यादा importance? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, salt आज भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही important है जितना पहले था, मगर शायद आपको आज आसानी से और कम दाम में salt मिल जाता है, इसलिए आप इसकी importance समझ नहीं पा रहे हो. Let me tell you some fascinating facts about salt that will surprise you. Now, the idea that salt is cheap is true, but only to an extent. Certain types of salt, like amethyst bamboo 9X, can cost you $100 for just 250 grams. अब ये इतना महंगा क्यों है? इस salt के कई health benefits हैं, और ये काफी rare है. इसके अलावा इसे प्रिपेयर करने के लिए 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एक बैम्बू पोल के अंदर 9 बार रोस्ट किया जाता है. 1920s में सॉल्ट की मदद से गॉइटर नाम की एक बीमारी पर जीत हासिल की गई. गॉइटर is a swelling of the thyroid which results in swelling in the neck.
It was salt enriched with iodine that became the best way to prevent goiter. अब एक ऐसा फैक्ट बताता हूं which will definitely blow your mind. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितना सॉल्ट यूज होता है उसका सिर्फ 3% खाने में यूज होता है. Yes, only 3%. Now I know what you're wondering. बाकी का 97% जाता कहां है? मैं बताता हूं. It goes on the streets. Yes, in America, sprinkling salt on the streets is a common practice. Why? Because it helps in de-icing the streets, which means that it lowers the freezing temperature of water and prevents the forming of ice. ऐसा करने से स्ट्रीट्स पर आइस फॉर्मेशन कम होती है एंड द ट्रैफिक कीप्स मूविंग. मगर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. सबसे पहले तो ये कि सॉल्ट एक करोसिव सब्सटेंस है और इसकी वजह से कार्स, रोड्स और ब्रिजेस को नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा जब ये आइस मेल्ट होता है तो सॉल्ट बहकर आसपास के वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है और इसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाता है. दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द फिश एंड द प्लांट्स इन द वाटर but also ends up in the drinking water of millions of people. The damage from the simple act of spreading salt on roads and highways results in the loss of about $5 billion every single year. Now let's get back to the Salina Turda. Even after so many years, the various machinery used for salt extraction was in excellent condition, and that is why the government decided to turn the salt mine into a museum. मगर सलाइना टुर्डा सिर्फ एक ही माइन नहीं है बल्कि इसके अंदर कई और छोटे माइंस मौजूद हैं. एंटर करते ही आप देखेंगे एक लंबा कॉरिडोर जो कि है फ्रांस जोसेफ गैलरी और इसी रास्तों पर घोड़ों पर लादकर सॉल्ट के बैग्स माइन से बाहर निकलते थे. टुर्डा सॉल्ट माइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है क्रिवैक चेंबर, जहां पर एक ऐसी फुल्ली फंक्शनिंग मशीन है जिसकी मदद से एक्सट्रैक्टेड सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था. ये एक गोल चक्की जैसी मशीन थी जिसे घोड़ों की मदद से गोल गोल घुमाया जाता था और सॉल्ट के बैग्स को नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता था. What makes this Krivak machine special is that it is the only one in any salt mine in Europe that is preserved in its original place. Then there is the Joseph mine, which is a conical mine, and as you stand in the gallery and shout out loud, your voice will echo through the mine in a way you would have never experienced before. इस वजह से इस जगह को echo chamber भी कहा जाता है. All these things combined with the amazing atmosphere of the Salina Turda makes it one of the most amazing tourist destinations in the world, attracting about 7 lakh visitors every year. Business Insider magazine even named it as the most beautiful underground place in the world. एक म्यूजियम के तौर पे सलाइना टुर्डा इतनी खूबसूरत और हिस्टोरिकल जगह है, मगर जब से इस सॉल्ट माइन और म्यूजियम में एक अम्यूजमेंट पार्क भी ऐड कर दिया, तब से यहाँ की टूरिज्म और भी बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए एक मेजर अट्रैक्शन बन चुकी है ये जगह. जैसे ही आप मेन ओपन लिफ्ट से नीचे आ रहे होंगे तो नजारा आपके होश उड़ा देगा. 400 फीट नीचे जाते हुए आपको दिखेगी एक ऐसी दुनिया जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. ब्राइटली लिट अप स्काई-फाई थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क विद अ जायंट फेरीज व्हील, मिनी गोल्फ कोर्सेस, bowling alleys, multiple table tennis and billiards tables, and a huge playground for children with slides and a mini basketball court. और इस सब के बीच में अर्थ के सरफेस के 400 मीटर नीचे है एक लेक जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं. इस सब के अलावा यहां पर एक एम्फी थिएटर भी है जिसमें 180 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और जहां मूवी स्क्रीनिंग्स भी होती है. इमेजिन वॉचिंग अ मूवी इन एन अंडरग्राउंड सॉल्ट माइन. साउंड्स अमेजिंग. मगर ये सारे मॉडर्न फैसिलिटीज और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं जब आप रियलाइज करते हो कि आप एक ऐसी जगह खड़े हो जो करीब 2000 साल पुरानी है. तो माइन वॉरियर्स, ये था हमारा आज का वंडर्स डाउन अंडर का एपिसोड, जहां हमने देखी एक अनोखी सॉल्ट माइन. और एक तरह से सॉल्ट एक्सट्रैक्शन भी नॉलेज गैदरिंग की तरह ही है. द मोर डीपर यू गो, द मोर यू गेट. और अगर आपको किसी भी फील्ड में डीपर नॉलेज चाहिए तो सबसे पहले माइंड वॉर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद डाउनलोड कीजिए माइंड वॉर्स ऐप और खेलिए अलग अलग टॉपिक्स पर क्विज़ेस. अगले एपिसोड में हम फिर एक बार जाएंगे डाउन अंडर और एक्सप्लोर करेंगे एक नया वंडर
down under. Till then, this is Chaitanya signing off. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.